Hello students, I'm Akanksha Sharma and I welcome you back to your channel English Only Zone. School, the temple of learning, is closed due to the pandemic. And I'm sure by this time you all must have realized how important a school is in students' life. You must be missing those joyful days, the chit chat with your friends, the pressure of timely submission of projects and assignments, sharing lunch with your friends, going to taps to fill water bottle, and whatnot. You can write in comment section and let me know what all things you miss about school. You must be surely missing something or the other. So write in the comment section what you miss and let me know. And not only you, but even we as teachers, we all miss you a lot. And school really seems boring without you, our dear students. So now, our government has issued a new guideline regarding the reopening of schools, and this video is about the same. So let's just read what news we got regarding the Unlock 4. UP government issues Unlock 4 guidelines, schools, colleges to remain closed till 30th September. Cinema halls, swimming pools, entertainment parks, theatres, auditoriums and similar places will remain closed. So the regular working of the school shall remain closed till 30th September. And in Hindi also they have given कि 9वीं से 12वीं तक के छात्र 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज जा सकेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ नए नियम लागू होंगे. So let's read in detail what is there in the news. All schools, colleges and educational institutions in Uttar Pradesh will remain closed till 30th September. The state government said on Sunday, a day after the Union Home Ministry issued the Unlock 4 guidelines. Unlock 4 guidelines के एक दिन बाद संडे को ये बताया गया कि schools, colleges और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं दे विल रिमेन क्लोज टिल 30th सितंबर. इट मींस उनकी जो रेगुलर वर्किंग होती थी बिफोर द पैंडेमिक वो अभी भी क्लोज रहेगी. चीफ सेक्रेटरी आर के तिवारी सेड ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग विल बी एनकरेज्ड. तो जो आपकी ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, दैट विल कंटिन्यू. Unlock 4 will come into effect from 1st September and will continue till 30th September. So it has already come into effect from 1st of September and it will continue till 30th. It means for this full month, this Unlock 4 will continue. The lockdown in containment zones in the state will remain in place till 30th September. तो जो containment zones हैं उनमें lockdown 30th September तक continue रहेगा. The order said, adding that the district magistrate cannot impose lockdown at the local level. और साथ में उस order में ये भी कहा गया है कि जो district magistrate हैं, that is DM, वो अपने तरफ से लॉकडाउन इम्पोज नहीं कर सकते अब. एंड देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट. तो एक ही स्टेट के अंदर अंदर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, एक दो स्टेट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो अब उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन फ्रीली मूव एनीवेयर. From 21st September onwards, 50% of the teaching and non-teaching staff can be called for online education work. ऑनलाइन एजुकेशन वर्क के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकता है. इट मीन्स द टीचर्स कैन टेक क्लासेस फ्रॉम देयर स्कूल. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल इशू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर दिस. और इसके लिए जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो इसके लिए एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर देंगे स्कूल्स को. एंड फाइनल डिसीजन के लिए आपको अभी अपने स्कूल के मैसेज का वेट करना होगा. लेट्स रीड द न्यूज इन हिंदी ऑल्सो. स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ही स्वेच्छा से स्कूल आने की छूट दी जा सकती है. इट मींस सिर्फ 9 से 12th तक के स्टूडेंट्स ही अपनी मर्जी से स्कूल आ सकते हैं. दैट टू अगर उनको कोई डाउट है तो उस डाउट के क्लैरिफिकेशन के लिए. लेकिन स्कूल कॉलेज कंटेनमेंट जोन के बाहर ही होना चाहिए. कंटेनमेंट जोन के अंदर अगर आपका स्कूल हुआ तो फिर आपको स्कूल आने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी. यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूल ही छात्रों को स्कूल आने की छूट दे सकते हैं. छात्र शिक्षकों का मार्गदर्शन के लिए अपने मर्जी से स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स की लिखित में सहमति लेनी होगी. इट मीन्स इफ यू आर कमिंग टू स्कूल टू क्लैरिफाई सम डाउट्स
in your subjects, then you have to bring a written permission or written application from your parents. कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों को यह छूट अनलॉक 4 के तहत दी जा रही है, जो 21 सितंबर से लागू होगी. इट मीन्स 21 सितंबर तक तो आपको बिल्कुल भी परमिशन अलाउ नहीं की जाती है स्कूल आने के लिए, बट आफ्टर 21 सितंबर with the written permission of your parents you can come to school. And before coming, please wait for some information from school itself. गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि छूट के दौरान स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा. तो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री, वो स्कूल्स को कुछ गाइडलाइंस देंगे. मे बी थर्मल स्क्रीनिंग होगी या फिर सैनिटाइजेशन किया जाएगा, तो उन गाइडलाइंस का स्कूल्स को फॉलो करना होगा. गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में यह भी कहा कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक नियमित कक्षाएं नहीं ले सकेंगे. इट मीन्स आप स्कूल में रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए ही स्कूल आएंगे. यानी ये सभी संस्थान नियमित एक्टिविटी के लिहाज से 30 सितंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगे. तो अब ये फाइनल हो गया कि 30 सितंबर तक आप लोगों की रेगुलर क्लासेस स्कूल में नहीं लगेंगी. और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप 9th से 12th क्लास तक में हैं और आपको कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट में, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप स्कूल की गाइडलाइंस के बाद स्कूल की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस अगर आपको मिलती है तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अपने टीचर्स से आकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द न्यूज विच आई वांटेड टू शेयर विद यू. एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द ऑनलाइन लर्निंग, keep on studying seriously, and if you have any doubts you can always contact your teachers. Thank you everyone.